Hello, fellows. Welcome back to our English channel with me, Nandita. Today, as you can see, we are going to deal with an author called Mitchell. Mitchell, the author. And this autobiographical piece is written by Gavin Maxwell. Gavin Maxwell was a English or Scottish rather author and basically a naturalist who worked with biological species and especially otter, and how his love towards otter came about, how he first met with his loving and lovely pet, the otter called Mitchell, and what all he experienced throughout his journey with this otter called Mitchell is what the story is about. The story begins when he is all alone in Iraq, and he is thinking of taking up a pet after a few years because he already had a dog for 10 years, but after the dog died, he could not take up that space again and allot it to someone else, right? But then his friends suggest him to take an otter there itself in Iraq, because in the river Tigris there are a lot of otters, and Tigris River is in Iraq. And later on, the friend sent him an otter through to Arabs, and that is when his journey with Mitchell starts, and how he takes Mitchell to his own country, what kind of games Mitchell liked, and how he was always entertained around Mitchell. That is what the story is. That's the outline of the story. ओके, सो आज हम लोग कर रहे हैं मिचबिल द ऑटर. ऑटर एक तरह का जानवर होता है, उत्पलाव, है ना. और इस ऑटर के बारे में ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पीस है, मतलब आप गाथा है गैविन मैक्सवेल करके एक ऑथर का, जो कि एक नेचुरलिस्ट भी थे, बायोलॉजिस्ट भी थे, एनिमल्स के बारे में बहुत खोजबीन करते थे, और उनका ऑटर के प्रति बहुत लगाव था. ऑटर के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था. तो हम इसी स्टोरी से पहली बार जान पाएंगे कि वो पहली बार ऑटर को कब पालते हैं, और उस ऑटर का नाम मिचबिल रख करके उसके साथ क्या क्या करते हैं, क्या क्या खेलते हैं, कैसे मज़े उठाते हैं उसके साथ. और पहले कुछ सालों तक वो क्यों कोई भी जानवर पेट नहीं रख पाए थे, क्योंकि उनके पास एक डॉग था जो 10 साल तक उनके साथ रहने के बाद एक दिन मर जाता है, और वो बहुत दुखी हो जाते हैं. लेकिन इस ऑटर के आने के बाद वो फिर से अकेले नहीं रहते हैं, और फिर से वो पेट को लाइक करने लग जाते हैं. ठीक है, तो मिचबिल द ऑटर वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन गैविन मैक्सवेल्स लाइफ. Now let's go into the theme and the outline. I have already told you it is all about pets and how life without pets can be rather lonely. The outline of the story, or Gavin Maxwell's story, is basically a description of his life-changing experience with his otter friend called Mitchell, which he takes up as a pet. And he is trying to send across to the readers his entire story, his entire journey, which is very interesting, of being around this pet otter Mitchell, and he's conveying all his experiences with this Mitchell otter. Okay, generally we keep pets like cats or rabbits or tortoise or dogs rather, है ना. Even Gavin Maxwell had a dog earlier, but later on he got completely obsessed with otter. तो गैविन मैक्सवेल अपने ऑटर फ्रेंड मिचबिल के बारे में सारी बातें हम तक शेयर करते हैं. और हम लोग सभी जानते हैं कि पेट्स के बगैर हमारा लाइफ काफ़ी लोनली हो जाता है, काफ़ी अकेलापन होता है अगर हम अकेले रहते हैं, अगर हमारे कोई रिलेटिव्स ना हो. गैविन मैक्सवेल का भी ऐसा ही था. तो पहले उनका एक डॉग हुआ करता था, लेकिन उसके मरने के बाद काफ़ी सालों तक उन्होंने कुछ लिया नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मिचबिल को अपनाया. तो आइए हम वर्ड मीनिंग्स में जाते हैं. पहले कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग्स आई एम टेलिंग यू. एपैथी मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, आप किसी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो एपैथेटिक हो आप. फ्लिक मतलब जग, झटके से कुछ करना. अकस्टम मतलब हैबिचुएटेड, आपका हैबिट में होना कोई चीज़. मिसरेबल मतलब बहुत दुखी होना, अनहैप्पी, सैड. इन्फ्यूरेटेड मतलब बहुत गुस्सा करना, टू मच ऑफ एंगर.
रिटेन मतलब किसी चीज़ को रखना, कीप समथिंग। इनग्रॉस्ड मतलब बहुत ध्यान लगाना, किसी में फोकस्ड करना। एम्बुश मतलब अचानक से कोई घिर के आपको अटैक कर रहा है, तो वो एम्बुश है। प्रिसाइसली मतलब करेक्टली, द गर्ल वॉज एबल टू रीड प्रिसाइसली, एबल टू रीड द एंटायर न्यूज़ पेपर प्रिसाइसली मतलब अच्छे से पढ़ लिया, करेक्टली पढ़ लिया। कंपल्सिव मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसा कुछ जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता, ऐसा कोई हाव भाव या कोई वर्ताव। डिस्ट्रैक्शन मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस होना जो कि आपके अटेंशन को हटा देता हो। अपफ्रंट मतलब फेस टू फेस आपको इंसल्ट करना। अब्रेस्ट मतलब साइड बाय साइड। देयर वर 5 buses abreast each other मतलब साथ में खड़े हुए थे। अब चलते हैं रीडिंग और डिटेल एक्सप्लेनेशन में। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that Camasferna, ringed by water a stone's throw from its door, would be an eminently suitable spot for the experiment. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. तो 1956 में, अर्ली 1956 में जब केविन मैक्सवेल इराक में थे, सदर्न इराक में थे, तो उनके दिमाग में अचानक से ये आइडिया आया, काफ़ी सालों के बाद, उनके डॉग के मर जाने के काफ़ी सालों के बाद ये आइडिया आया कि वो जहाँ पर रहते हैं, वो जहाँ के हैं, कैमसफर्ना है ना स्कॉटलैंड में, वो एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्पॉट है कि एक स्टोन थ्रो अवे में ही आपको पानी दिख जाता है, हर जगह पर पानी पानी है। ये एक बहुत ही एमिनेंटली बहुत ही ज़्यादा सूटेबल जगह होगा, स्पॉट होगा फॉर कीपिंग एन ऑटर एज अ पेट। ऑटर रखना चाहते हैं। व्हेन आई कैजुअली मेंशन, और ये बात उन्होंने एवे ही कैजुअली मतलब एवे ही अपने फ्रेंड को बताया, और उनके फ्रेंड ने भी कैजुअली ही एवे ही रिप्लाई किया कि ऑटर अगर लेना है तो यहीं पर लो। यहाँ का जो टाइग्रिस रिवर है, इराक के बीचों बीच 2 रिवर स्ट्रीम जाते हैं। वैसे रिवर अभी नहीं है, ज़्यादातर वो मार्शी एरियाज ही है। मार्शी मतलब जो कि मडी पैच ऑफ लैंड होता है, हल्का हल्का पानी होता है, मडी पैच ऑफ लैंड होता है। तो वो कहता है कि उसका फ्रेंड जो है, केविन मैक्सवेल का फ्रेंड, जब सुनता है ऑटर के बारे में तो वो बोलता है यहीं पर ले लो, टाइग्रिस मार्शेस में बहुत मिलते हैं, और अरब उनको टेम भी करते हैं, मतलब पेट भी रखते हैं। We were going to Basra to the Consulate General to collect and answer our mail from Europe. At the Consulate General, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day, the line was out of order. On the second, exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. My friend left, and I arranged to meet him in a week's time. 5 days later, my mail arrived. I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. तो बसरा के कंसुलेट जनरल के ऑफिस में इन लोग दोनों जा रहे थे अपने मेल्स लेने, मेल्स मतलब लेटर्स लेने और उनको आंसर करने के लिए। तो उनके फ्रेंड के तो मेल्स आ गए थे, उसका फ्रेंड जो है इसलिए वो चला जाता है और 1 वीक के टाइम में मिलने की बात करके वो चला जाता है। लेकिन इनको इनके मेल्स आने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो वो पहले तो वो केबल करते हैं, फिर नहीं हो पाता है, वो टेलीफोन बुक करते हैं, तो पहले दिन कोई प्रॉब्लम हो जाता है, फिर दूसरे दिन रिलीजियस हॉलीडे हो जाता है, तीसरे दिन भी कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, ऐसे करके उनका टेलीफोन भी बुक नहीं हो रहा होता है। लेकिन फाइनली 5 दिनों के बाद उनका मेल वापस उनको मिल जाता है, और फिर वो मेल को पढ़ने के लिए जब अपने कंसुलेट ऑफिस के आसपास जो उनके घर होते, कंसुलेट ऑफिस मतलब जो हमारे यहाँ पर जो मतलब उनके कंट्री के ऑफिसेस वहाँ पर जो होते हैं, है ना, फॉरेन ऑफिसेस जो वहाँ पे होते हैं, वहाँ पर वो अपने रूम में जब जाता है तो वहाँ पर देखते हैं कि स्क्वाट करके मतलब ऐसे पैर उठा करके बैठे हुए हैं 2 अरब्स, और उनके रूम के सामने ही, और उनके पास एक सैक है, सैक मतलब बोरा है जो कि स्क्वाम कर रहा है मतलब हिल डुल रहा है। एंड
उसमें उस सैक में ज़रूर से एक ऑटर रहा होगा, क्योंकि उसमें एक लेटर भी साथ में उन्होंने पकड़ा हुआ है जिसमें कि उनके उसके फ्रेंड ने लिखा है हियर इज़ योर ऑटर। तो उनके फ्रेंड की तरफ से ये एक गिफ्ट था। और ये गिफ्ट कहाँ से मिला है, आप इराक का मैप देख पा रहे हो। देखो जो ऊपर वाला जो रिवर है वो टाइग्रिस रिवर है, और जो नीचे वाला है वो यूफ्रेटिस है। तो टाइग्रिस रिवर के आसपास से ये ऑटर उनको मिला होगा। आगे बढ़ते हैं। With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. It is, in effect, a thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. The creature that emerged from the sack out onto the spacious tile floor of Consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. तो इसके बाद जब वो सैक खोलते हैं तो उनकी लाइफ का एक फेज शुरू होता है। वो कहते हैं जो कि अब तक भी ख़त्म नहीं हुआ है। ये एक थ्रैल्डम था, एक फिक्सेशन था, मतलब एक एक्साइटमेंट, किसी चीज़ से जुड़े रहने का एक्साइटमेंट जिससे कि आप बाहर नहीं आ सकते, ऑब्सेस्ड हो जाते हो। और वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी ऑटर ओनर जो होता है, जो भी ऑटर रखता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। जो क्रीचर वहाँ से निकल के आया, इमर्ज हुआ सैक में से, और कहाँ पर निकला, वो स्पेशियस मतलब काफ़ी जगह वाले टाइल फ्लोर पे निकला बेडरूम में। वो रिजेंबल कर रहा था, मतलब दिख रहा था एक स्मॉल छोटा सा मिडिवली कंसीव्ड मतलब थॉट ऑफ, सोचा हुआ ड्रैगन की तरह। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल he was coated with symmetrically pointed scales of mud armor. Armor का मतलब होता है कवच। तो जैसे उसके सिमेट्रिकली एकदम कवर होकर के टेल तक बिल्कुल मड से आर्मर बना हुआ था। ठीक है। बिटवीन हुज टिप्स वॉज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। तो मोल भी एक तरह का एनिमल होता है, उसके जैसे फर होते हैं, वेलवेट फर होते हैं ब्राउन कलर के। इसके भी वैसे ही फर थे, लेकिन वो बहुत ही हल्के फुल्के दिख रहे थे। ही शुक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड and see the otter as it were in its true colors. Mitchbill, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by zoologist Lutrogale Perspicillata maxwelli और मैक्सवेल्स ऑटर। तो उसको 1 महीने तक धुलाना पड़ा रगड़ रगड़ के, तब जाकर के उसका एक्चुअल कलर और एक्चुअल चेहरा दिखाई दिया। और ये एक ऐसे प्रजाति का ऑटर था, मिचबिल जो था, जो कि इससे पहले कभी जूलॉजिस्ट को मिला नहीं था, और इसका एक नया ही नाम फिर दिया गया जिसको कि हम मैक्सवेल्स ऑटर भी बोलते हैं। For the first 24 hours, Mitchell was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible. The second night, Mitchell came onto my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servants brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy matlab disinterest, and take a much too keen interest in his surroundings. I made a body belt for him and took him on a lead to the bathroom, where for half an hour he went wild with joy in the water, plunging and rolling it, shooting up and down the length of the bathtub underwater, and making enough slosh and splash for a hippo. This is where I was to learn is a characteristic of otters. Every drop of water must be, so to speak, extended and spread about the place. A bowl must be at once overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move and made to do things. When static, it is wasted and provoking. Static मतलब रुका हुआ अगर होता है तो वो wasted लगता है। तो पहले तो डिसइंटरेस्ट एपैथी दिखा रहा था, लेकिन फिर बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगता है। एक दिन वो खुद से पहले अलग थलग सो रहा था, खुद से उसके बेड पर आकर के उसके नी के क्रूक में, मतलब नी के यहाँ पर आकर के सो जाता है। फिर उसके बाद जब उसको बेल्ट लगा करके वो पानी में ले जाते हैं बाथरूम में, तो वो एकदम पागल हो जाता है खुशी के मारे, और प्लंज करता है, जंप करने लगता है, रोल करने लगता है वाटर टब में, इधर से उधर, स्लॉश एंड स्प्लैश करना तो आप जानते हैं वही सेम चीज़ है। और इससे उनको पता चलता है कि ऑटर्स जो है वो कितना पानी पसंद करते हैं। राइट, यू कैन सी ऑटर प्यार करने लगता है पानी से। ठीक है।
2 days later, Mitchell escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. By the time I got there, he was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. 2 दिन के बाद एक दो दिन तो उसको ले जाना पड़ा, पर 2 दिन के बाद वो खुद से जाकर के डिसअपियर हो गया बाथरूम में, और जाकर के वो बाथरूम का टैप को, क्रोमियम टैप जो क्रोमियम से बना हुआ टैप है, उसको अपने पॉज से फंबल करने लग गया, मतलब इधर उधर करने लग गया. आई वॉच्ड अमेज्ड, मैं एकदम अमेज हो गया. इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टैप फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर. हल्का सा पानी निकलने लग गया था 1 मिनट के अंदर में. एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और कुछ देर के बाद पूरा फ्लो कर लिया. ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे. ऑन लेटर ओकेजन्स ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर, चिटरिंग विद इरिटेशन. चिटरिंग मतलब उसका आवाज़ निकाल के, गुस्से से आवाज़ निकालता था. इसके बाद उस दिन तो वो खुशी खुशी खोल लिया किसी तरह से, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता था कि दूसरी तरफ घुमाने लगता था और फिर वो इरिटेट हो जाता था, चिटर करने लगता था. And disappointment at the tap's failure to cooperate. Very soon, Mitchell would follow me without a lead and come to me when I called his name. He spent most of his time in play. He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footer soccer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with the small objects between his paws. Marbles were Mitchie's favorite toys for the pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without ever dropping one to the floor. तो मिचबिल पानी तो पसंद करता था जैसे कि दूसरे ऑटर पसंद करते थे. टैप खोलता था, कभी कभी खोल लेता था, कभी कभी गुस्सा होता था जब नहीं खुलता था. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, मिचबिल का और ऑथर का फ्रेंडशिप हो गया. वो जब भी उसको पुकारता था वो चला आता था, और उसके गेम्स वो समझने लग गया. वो बॉल से खेलता था, सॉकर प्लेयर की तरफ फ्लिक कर देता था अपने हेड नेक से, ठीक है. लेकिन सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम था उसका मार्बल, जो कि अपने पेट में ऐसे सो करके वो इधर उधर कर सकता था बिना उसको गिराए हुए. The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Mitch to England and to Camusferna. The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. The airline insisted that Mitch should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. I had a box made, and an hour before we started, I put Mitch into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal. तो डेज इसी तरह से पीसफुली बसरा में पास होने लग गए. लेकिन आई ड्रेडेड, मतलब मैं डरने लग गया कि कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करूंगा इंग्लैंड और उसके बाद वहाँ से कैमसफर्ना में. ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन ने मना कर दिया, एनिमल्स को बुक नहीं करवाया जा सका. तो पेरिस एयरलाइन में उन्होंने फ़्लाइट बुक करवाया और वहाँ से फिर वो लंदन के लिए बुक करवाए. लेकिन ये वाला एयरलाइन जो था वो भी इंसिस्ट कर रहा था, मतलब जोर दे रहा था कि मुझको एक बॉक्स 18 इंचेस स्क्वायर बॉक्स में ही पैक करके लाना है. तो वो बॉक्स वो बना लेते हैं और मुझको अपने खाने जाने से पहले, जब वो निकलने वाले हैं खाने जाने से पहले, मुझको उस बॉक्स में डाल देते हैं ताकि वो अकस्टम हो सके, जैसे मैंने बताया हैबिचुएटेड हो सके. When I returned, लेकिन वो मील खाने के बाद जब वो वापस आए, there was an appalling spectacle. appalling मतलब बहुत ही भयावह, बहुत ही बुरा spectacle, मतलब एक सीन था. There was complete silence from the box, but from its air holes and chinks, जो छोटे छोटे छेद थे around the lid, blood had trickled and dried. blood वहाँ पर trickle होकर के dry भी हो गया था. I wiped off the lock, wiped off मतलब rub कर दिया उसको, and tore open the lid, and Mitch, exhausted and blood spattered मतलब blood से बिल्कुल भरा हुआ, whimpered, ऐसे रोना है ना, and caught my leg, और मेरे लेग को वो पकड़ लिया क्योंकि वो इसके साथ मतलब कर रहा था, हाथ वाथ मार करके उससे खून हो गया है और अब वो रो रहा था और उसने उसको पकड़ लिया. He had torn the lining of the box to shreds. जो भीतर का जो लाइनिंग होता है उसको उसने एकदम टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, श्रेड्स कर दिए थे. When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight, and the airport was 5 miles distant. I put the miserable, matlab sad Mitch back into the box, holding down the lid with my hand. I sat in the back of the car with the box beside me
As the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting मतलब इधर उधर बुलेट की तरह, बुलेट जब ऐसे ऐसे होकर के जाता है उसको रिकोचेटिंग बुलेट बोलते हैं। तो क्योंकि टाइम हो गया था तो उसने फिर से वो मिजबिल को बॉक्स में डाला और अपने हाथ से दरवाजे को पकड़े रहा, बॉक्स के दरवाजे को, और ड्राइवर जो है एकदम रिकोचेटिंग बुलेट की तरह इधर शाइन शाइन बुलेट की तरह निकल लिया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। आई वॉज रश थ्रू मतलब जल्दी ले जाया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो द ऑफिशियल्स ऑफ एयरक्राफ्ट वेर इन्फ्यूरिएटेड, सारे गुस्से में थे। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, एटलीस्ट फ्रंट सीट मिला था लकीली, वो कह रहे हैं। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ न्यूज़ पेपर्स, रैंक फॉर द एयर हॉस्टेस एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिच टू कीप इन अ कूल प्लेस। I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration, profound मतलब deep admiration मतलब उसके लिए आदर फॉर दैट एयर हॉस्टेस, क्योंकि उसने एयर हॉस्टेस को मिच को खिलाने के लिए फ़िश दिए और उसका आधे घंटे तक मिच ने क्या क्या किया वो सारा बताया। और शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मतलब वो बहुत ही अच्छी थी। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई बेड ऑन माई नी एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस। जब उसने बोला कि नीचे रखने की ज़रूरत नहीं, आप अपने गोद पे रख सकते हैं, तो वो बहुत खुश हो गया, थैंकफुल हो गया। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, एकदम एक झटके में बॉक्स से निकल गया। जैसे ही मैंने खोल करके उठाने की कोशिश की, ही डिसअपियर एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। देयर वर स्क्वैक्स एंड स्क्रीक्स, मतलब चीखने की आवाज़ें आ रही थी। एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, a rat, a rat! I caught sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. Beneath मतलब under, portly मतलब जिसका पेट निकला हुआ हो, white turbaned Indian था, उसके नीचे से मैं जाते हुए उसको देखा। Diving for it मतलब कूद के मैं उसको पकड़ने गया। I missed but found my face covered in curry, लेकिन मैं करी से एकदम ढक गया, क्योंकि वो इंडियन के नीचे जाकर के मैं गिरा और उसके वहाँ से करी आकर के मेरे ऊपर गिरा। Perhaps, said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. I returned to my seat. I was craning my neck, trying to follow the hunt, when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. And Mitch bounded onto my knee and began to nuzzle my face. Nuzzle मतलब नाक से और जीभ से चाटने लग गया मुझे। तो मैं उसकी तरफ देख रहा था, इधर पीछे आया कि नहीं। जब एयर हॉस्टेस ने बोला आप जाकर के सीट पे बैठ जाइए, मैं देखती हूँ, तो मैं जैसे ही बैठा तो मिच वहाँ पर ही था और आकर के मुझे चाटने और प्यार करने लग गया। तो ये हालत हो रही थी वहाँ पर एयर हॉस्टेस और उनकी। Mitch and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and terrapin shell. I had brought back from his native masses with the ping pong ball. He invented a game of his own which could keep him engrossed matlab focused, for up to half an hour at a time. A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home, so that the lid, when closed, remained at a slope from one end to the other. Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. He would dash around to the other end to ambush its arrival. तो मिच ने पिंग पोंग बॉल और सूटकेस जो कि थोड़ा सा डैमेज हो गया था और टेढ़ा हो गया था, उस पर गेम खेलना शुरू कर दिया। उसको एक तरफ छोड़ देता था, वो दूसरे तरफ आने से उसको एम्बुश करता था या पकड़ लेता था। Outside the house, I exercised him on a lead precisely as if he had been a dog. Mitch quickly developed a certain compulsive habits on these walks in the London streets, like rituals of children who, on their way to and from school, must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch each seventh upright of the iron railings, or pass to the outside of every second lamp post. तो जैसे बच्चे दो लैम्प पोस्ट क्रॉस करके फिर थोड़ा सा ऐसे घूम के आ जाते हैं, या हर एक पेविंग ब्लॉक के बीचों बीच पैर रखना पसंद करते हैं स्कूल से आते जाते, वैसे ही जब मैं मिच को डॉग्स की तरह घुमाने लिए जाया करता था तो उसको भी एक कंपल्सिव हैबिट हो गया। वो क्या करने लग गया? Opposite to my flat was a single-storied primary school, along whose front range ran a low wall some 2 feet high. On his way home, but never on his way out, Mitch would tug me to this wall, jump onto it, and gallop the full length of the 30 yards, to the hopeless distraction both of pupils and of the staff within.
तो वो एक वॉल था एक प्राइमरी स्कूल के पास में, जिसके ऊपर वो चढ़ जाता था और गैलप करता था, टक 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 करके चला जाता था, और सारे स्टाफ और बच्चे उसको देखने रह जाते थे। और वो हर बार मतलब जाते वक्त तो नहीं करता था, लेकिन आते वक्त ये ज़रूर से करता था, ये उसका कंपल्सिव हैबिट था। It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines or mustelids, ठीक है, shared by the badgers, mongoose, weasels, toad, mink and others. I faced a continuous barrage मतलब एक फ्लो ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चन, कंजेक्चर मतलब गेसिंग क्वेश्चंस होने लगे, क्योंकि मुझे तो पता था कि लंडनर्स लोग को वैसे कुछ पता नहीं होगा एनिमल्स के बारे में, लेकिन इतना सरप्राइजिंग था कि ये कुछ भी नाम बोल देते थे। ठीक है, मस्टलीड्स में कोई सा भी नाम बोले कि बैजर बोल दे या वीजल बोल दे या मोंगूज बोल दे या स्टोट बोल दे तो अलग बात है, लेकिन कुछ भी नाम इनको बोल देते थे इसको। That sprayed all the mustelines but the otter. More random guesses hit on a baby seal, a squirrel, तो seal कभी पुकारते थे, कभी squirrel पुकारते थे। Is that a walrus? Walrus पुकार देते थे। Mr. reduced me to giggles. किसी ने उसको walrus जब बोला तो I started laughing, giggling, हा 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 करके हंसने लग गया। And outside a dog show, I heard a hippo, a beaver, a bear cub, a leopard, one apparently that had changed its spots, and a brontosaur. तो लेपर्ड भी बोला गया उसको, हिप्पो भी बोला गया। ठीक है, लेपर्ड में तो स्पॉट्स होते हैं शायद, उनको ये भी ध्यान नहीं रहा। मिच वॉज एनीथिंग बट ऑटर, मतलब उसको कोई भी नाम से पुकारते थे लेकिन ऑटर नहीं बुलाते थे। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर digging a hole in the street. I was still far from him when he laid down his tool, put his hands on his hips and began to stare. As I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have me know that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him, abreast मतलब side by side. He spat, उसने थूका, glared या stare किया मतलब घूर के देखा, and then growled and घुर्रा के बोला, "Here, mister, what is that supposed to be?" मतलब उसको इंसल्टेड फील हो रहा था कि ये क्या लेकर के घूम रहा है ये बंदा। तो वो कह रहा है कि ये जो बंदा था, लेबरर था, इसका ही क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग था। ओके, सो दैट्स द स्टोरी, दैट्स वेयर द स्टोरी एंड्स। इट इज़ जस्ट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गैविन मैक्सवेल। Now let's talk about a long answer type for your board exam. Basically इस चैप्टर में लॉन्ग आंसर टाइप जो है वो थीम बेस्ड ही आने चाहिए। और थीम क्या है कि लाइफ कैन बी रियली बोरिंग, लाइफ कैन बी रियली मिजरेबल एंड लोनली if we do not have pets, especially if we are not a family oriented person. So here I have made up a question like, pets can remove our inner darkness and lead us to the brightness of joyous life. Do you agree with this idea through your reading of the chapter Mitchbill the Otter? तो इसमें आप कोई थीम बेस्ड आंसर लिख सकते हो, या इस तरह का पेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये आंसर लिख सकते हो। Gavin Maxwell writes a beautiful account of his incredibly unique pet Mitchbill, who is an otter in this story, to teach us the essence of pets in our lives. तो गैविन मैक्सवेल अपने इनक्रेडिबल मतलब बिल्कुल सोचा नहीं जा सके ऐसे एक पेट ऑटर मिचबिल के द्वारा हमको एक एसेंस टीच करते हैं, पेट्स का इम्पोर्टेंस बताते हैं हमारे लाइफ में। कीपिंग पेट्स इज़ आवर चॉइस, बट हाउ वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अराउंड देम एंड टेक utmost care of them. While referring to this slight mishap where Mitchbill was put in a box as required and it got hurt, it has also been subtly hinted at by the narrator that we must always think about the pet's mindset before putting it into any new situation. तो इसमें तुम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो, उसके गेम्स को भी इंक्लूड कर सकते हो कि वी गेट टू नो हाउ वी कैन एंटरटेन आवरसेल्फ बाय बीइंग एंगेज विद द गेम्स दैट द पेट्स लाइक टू प्ले, है ना। तो ये भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ एक ही चीज़ स्पेसिफिकली ऐड किया क्योंकि वो जो है वो एक बहुत सेंटिमेंटल इशू है। वो क्या है, वो जो फ्लाइट में ले जाते वक्त मिचबिल को बॉक्स में घुसाना पड़ा और उससे जो एक मिसहैप हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, है ना, और वो कितना बुरी तरह से हर्ट हो गया, ज़ख्मी हो गया। इससे वो सटली मतलब इनडायरेक्टली हिंट करते हैं कि हमें अपने बारे में सोचने से पहले पेट के बारे में सोचना चाहिए अगर उसको किसी भी सिचुएशन, नए सिचुएशन में ले जा रहे हैं। ठीक है,
और आप ये मैंने एक लाइन एंडिंग दी है, इसको आप एक्सटेंड करके बड़ा करके भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, पेट्स आर नो लेस देन आवर ओन फैमिली मेम्बर एंड मस्ट बी ट्रीटेड सो। तो हम लोगों को अपने फैमिली मेम्बर के साथ टाइम बिताने में जैसे मज़ा आता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गेम्स खेलने में, उनको घुमाने ले जाने में जैसे मज़ा आता है, वैसे ही अपने पेट्स के साथ भी करना चाहिए। और इसका हर एक का आप एक ऑप्शन भी दे सकते हो, जैसे कि वो लंदन में कैसे उसको घुमाने ले जाता था, उसका एक कंपल्सिव बिहेवियर था कि वो दीवार पे चढ़ जाता था, लोग उसको स्टेयर करते रहते थे, लेकिन उसमें भी गैविन मैक्सवेल को मज़ा ही आता था। ठीक है, तो ऐसा बताते हुए आप लिख सकते हो कि वो हमारा फैमिली मेम्बर ही है और उसी तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। ऑलराइट, so hope you have understood the video. This answer can be even more extended, as I have told you, कि इसमें आप और भी तरह के एग्जाम्पल्स आप बुक में से डाल सकते हो कि उसने और क्या क्या किया। ठीक है, लेकिन मैंने मेन जो एग्जाम्पल, जो सबसे इमोशनल एग्जाम्पल था वो डाला है। होप यू हैव लाइक द वीडियो, अंडरस्टूड द चैप्टर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you and good day. Keep learning, keep exploring.